علی پور میں پاسکو باردانہ میگا اسکینڈل، کروڑوں روپے کی کرپشن پر 4 رکنی کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ باردانہ کی تقسیم اور فروخت میں بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا۔ تحصیلدار اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اراضی سینٹر باردانہ خرد برد کرنے میں ملوث۔ قانون کو شوکت بھٹا، پٹواری محمد فضل، محمد اکرم، سجاد حسین، ہاشم علی بھی ملوث پائے گئے۔ انکوائری بورڈ نے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے سفارشات پیش کر دی۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ، کمشنر ڈی جی خان نے کارروائی کے لیے خط لکھ دیا۔ ایم پی ایس سبطین رضا نے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کو خط لکھا تھا۔ زونل ہیڈ پاس کو تحصیلدار چیئرمین میں وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، علی پور میں پاسکو باردانہ میگا اسکینڈل، کروڑوں روپے کرپشن پر 4 رکنی کمیٹی کی رپورٹ پیش۔ باردانہ کی تقسیم اور فروخت میں بے ضابطگیوں کا انکشاف۔ تحصیلدار اقبال، اسسٹنٹ ڈائریکٹر اراضی سینٹر باردانہ خرد کرنے میں ملوث۔ قانون کو شوکت بھٹا، پٹواری محمد فضل، محمد اکرم، سجاد حسین، ہاشم علی بھی ملوث پائے گئے۔ انکوائری بورڈ نے پیڈا ایکٹ کے تحت کارروائی کے لیے سفارشات پیش کر دیں۔ ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ، کمشنر ڈی جی خان نے کارروائی کے لیے خط لکھ دیا۔ ایم پی ایس سبطین رضا نے وزیر داخلہ اور وزیر اعلیٰ کو خط لکھا تھا۔ زونل ہیڈ پاس کو تحصیلدار چیئرمین وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم نے کارروائی کا آغاز کر دیا۔ جنوبی پنجاب میں خسرہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ کئی علاقوں میں خسرے کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ مختلف ہسپتالوں میں خسرے سے متاثرہ سینکڑوں بچے زیر علاج ہیں۔ تمام اضلاع کی انتظامیہ خسرہ کیسز بڑھنے پر متحرک ہیں۔ حکومت پنجاب بھی بچوں کو خسرہ سے بچانے کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ جنوبی پنجاب میں خسرہ آؤٹ آف کنٹرول۔ بہاولپور میں بھی خسرہ کی صورتحال بگڑنے لگی۔ سرکاری ہسپتالوں میں خسرہ کے مریض 90 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں خسرہ کا شکار مزید 22 بچے رپورٹ ہوئے۔ وکٹوریہ ہسپتال میں 20، سر صادق ہسپتال میں 2 بچے لائے گئے۔ 8 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ رواں ماہ خسرے سے 3 بچے جاں بحق ہوئے۔ محکمہ صحت نے ابھی تک خسرہ ہاٹ اسپاٹس کی نشاندہی نہیں کی۔ خسرہ سے متاثرہ بچوں میں اضافے کے باوجود آگاہی مہم نہ ہونے کے برابر ہے۔ نمونیا کے بعد خسرہ معصوم جانے نکلنے لگا۔ رحیم یار خان میں خسرہ سے ایک اور بچہ جاں بحق ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹے میں خسرہ سے متاثرہ 11 بچے رپورٹ ہوئے، جبکہ خسرہ کے مشتبہ 2 مریض بچے جاں بحق ہو چکے ہیں۔ شہر کے ہسپتالوں میں 38 بچے خسرہ کے شبہ میں زیر علاج ہیں۔ خانوال میں خسرہ کیسز بڑھنے کی وجہ سے ضلعی انتظامیہ متحرک ہو گئی۔ ڈپٹی کمشنر محمد علی بخاری نے مختلف بنیادی ہیلتھ مراکز کے دورے کیے۔ انہوں نے ڈاکٹرز سمیت دیگر عملے کی حاضری اور مریضوں کی آمد کا ریکارڈ چیک کیا۔ ڈپٹی کمشنر نے ادویات کے اسٹاک کی پڑتال کی اور سروس ڈیلیوری کا جائزہ بھی لیا۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ تمام ہیلتھ مراکز پر خسرہ سے بچاؤ کی ادویات موجود ہیں۔ جہانیہ میں بھی خسرہ کی وبا تیزی سے پھیلنے لگی۔ ایک ہفتے میں خسرہ سے متاثرہ 18 بچے رپورٹ ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ بچے صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ٹی ایچ کیو ہسپتال جہانیہ میں خسرہ سے متاثرہ بچوں کے لیے الگ وارڈ قائم کیا گیا ہے، جہاں تربیت یافتہ عملہ 24 گھنٹے موجود رہتا ہے۔ اسسٹنٹ کمشنر تیمور خان کی زیر قیادت خسرہ سے آگاہی کے لیے واک بھی کی گئی۔ ایڈیشنل ایم ایس ٹی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر آشف جاوید کا روہی سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ خسرہ کا شکار بچوں کو فوری ہسپتال لایا جائے۔ اس وقت ٹی ایچ کیو ہاسپٹل جہانیہ کے اندر جو ہے خسرے کے 18 بچے رپورٹ ہو چکے ہیں، اور ان میں سے بیشتر جو ہے بچے ہے وہ صحت یاب ہو کر واپس گھروں کو جا چکے ہیں، اور الحمدللہ ایسے بچوں کو ہم نے بڑا اچھا ٹریٹمنٹ یہاں پہ فراہم کیا ہے۔ ہمارے پاس ٹرینڈ پیڈیاٹریشین موجود ہیں جو کہ ہر وقت یہاں پہ بچوں کی سروسز جو ہے اس طرح کے دینے کے لیے موجود ہیں۔ حکومت پنجاب بھی بچوں کو خسرہ سے بچانے کے لیے اہم اقدامات کر رہی ہے۔ والدین کو بھی چاہیے کہ بچوں میں خسرہ کے علامات ظاہر ہوں تو فوری ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ جوتے بھی اب کرنسی اسمگلنگ کے لیے استعمال ہونے لگے۔ کسٹم انفورسمنٹ ملتان کی ایئرپورٹ پر کارروائی۔ 20 لاکھ مالیت کی UAE کرنسی کی اسمگلنگ ناکام بنا کر ایک ملزم گرفتار، جبکہ 250 غیر ملکی سم سمیت نان ڈیوٹی پیڈ اشیاء کی اسمگلنگ میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ پان چپل اب کرنسی اسمگلنگ کے لیے بھی استعمال ہونے لگی۔ کسٹم انفورسمنٹ کی ملتان ایئرپورٹ پر بڑی کارروائی۔ کرنسی، غیر ملکی سمز اور دوسری نان ڈیوٹی پیڈ اشیاء کی اسمگلنگ میں ملوث 5 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ایڈیشنل کلیکٹر کسٹمز شاہ فیصل سہو کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ بیرون ملک جانے والے مسافر سے 20 لاکھ مالیت کی UAE کرنسی برآمد ہوئی۔ ملزم نے غیر ملکی کرنسی کپتان چپلوں میں چھپا رکھی تھی، جو کہ اپنی نوعیت کا واحد کیس ہے۔ امیج آئے وہ عام شو کی نسبت ذرا مختلف تھے، تو اس بنا پہ اس کو جب اس کے شو اتروائے گئے، جوتے اتروا کے ان کو کھول کے چیک کیا گیا تو اس کے اندر کرنسی چھپی ہوئی ہمیں ملی، جو کہ 24,310 UAE درہم اس میں سے نکلے، جو کہ وہ مسافر جوتے میں چھپا کے اسمگلنگ کر رہا تھا۔
एडिशनल कलेक्टर का मजीद कहना था कि 4 दीगर मुसाफिरों को नॉन ड्यूटी पेड अशिया की स्मगलिंग पर गिरफ्तार किया गया। नॉन ड्यूटी पेड अशिया में चार्जर, गारमेंट्स, मोबाइल्स और लैपटॉप शामिल हैं, जबकि बैरून मुल्क से आने वाले मुलजिमान से 250 गैर मुल्की सिम्स बरामद हुई, जो कि एक बरतानवी कंपनी की जारी शुदा हैं। 4 पैसेंजर ऐसे मिले जिनके पास नॉन ड्यूटी पेड स्मगल शुदा अशिया कसीर तादाद में, जिसे हम कमर्शियल क्वांटिटी कहते हैं, जो कि पैसेंजर अलाउंस में परमिसिबल नहीं होती, उनसे निकली। और इन अशिया की कीमत, जिनमें ये फॉरेन ओरिजिन गिफ्ट गैफ कंपनी यूके की ये मोबाइल कंपनी है, इसकी सिम्स भी थी, कोई 250 के करीब सिम्स, जो कि यहाँ पे शायद किसी कोई मिस यूज़ होता है इन सिम्स का, वो भी हमने तहवील में ली हैं। और ये चारों अशखास, इनके खिलाफ भी FIR का इंदराज किया गया है और ये चारों अशखास ज़ेर हिरासत हैं। एडिशनल कलेक्टर के मुताबिक कलेक्टर कस्टम इमरान सज्जाद बुखारी की हिदायत पर 5 FIR दर्ज की गई। 3 लाख लीटर से ज्यादा डीजल भी जब्त कर लिया गया। कैमरामैन इरफान असलम के साथ सैयद जुहैब बुखारी, रोही, मुल्तान। रहीम यार खान की ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा मुस्तरद कर दिया। ताजिर बरादरी के रहनुमा कहते हैं कि हुकूमत ने बिजली महंगी करके कारोबारी तबके पर महंगाई का बम गिरा दिया है। एक तो बिजली होती नहीं, ऊपर से आए रोज महंगी होती जा रही है, जो कि काबिल मुसम्मत है। रहीम यार खान की ताजिर बरादरी ने बिजली की कीमतों में इजाफे पर हुकूमत को खरी खरी सुना डाली। एडिशनल जिली जनरल सेक्रेटरी मरकजी अंजुमन ताजरान चौधरी मोहम्मद बूटा ताहिर का कहना था कि हुकूमत ने बिजली की कीमत में इजाफा करके अवाम और कारोबारी तबके को मुआशी कत्ल किया है। एक तो कारोबार की आमदन कम है, ऊपर से माहाना अखराजात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आमदन का ज्यादातर हिस्सा बिजली के बिलों की अदायगी में खर्च हो जाता है। कारोबार ठप है, महंगाई से जीना मुश्किल हो चुका है। गर्मियों में बिजली की से 8 घंटे तक पहुंच गया है। ऊपर से बिजली के भारी भरकम बिलों से मियार जिंदगी मुतासिर होकर रह गया। कि बिजली तो हर माह महंगी होती है, ये तो बताते हैं ना, जब कि जिस तरह अब है कि 3 रुपये कुछ पैसे, ये तो आवाम को पता ही नहीं चलता। हर माह बिल में नए टैक्स और नए बिजली के जो रेट्स होते हैं। बहरहाल हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हुकूमत ने अभी तक खासकर बिजली के हवाले से कोई रिलीफ नहीं दिया जिसके नारे लगाए गए थे, और कारोबार है नहीं। ताजर बरादरी इंतहाई परेशान है बिजली के बिलों के हवाले से। तो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है, फिर बिल जितनी भी लोड शेडिंग होती है, बिल हमेशा हर महीने उससे ज़्यादा ही आता है कम आने की बजाय। ताजिर बरादरी के रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बिजली सस्ती की जाए और बिजली की लोड शेडिंग के जिन को भी बोतल में बंद किया जाए। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आमिर भट्टी, रोही न्यूज़, रहीम यार खान। मुल्तान में सब्जियों और फलों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। जिले इंतजामिया मार्केट में सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है। चाइना लहसुन 535 के बजाय 600 और अदरक 576 की बजाय 800 रुपए फी किलो फरोख्त। प्याज 40 रुपए महंगा होकर 160 रुपए फी किलो हो गया। मुल्तान में सब्जियों और फलों के सरकारी और मार्केट नरखों में फर्क बरकरार। चाइना लहसुन दोबारा 180 रुपए महंगा होकर 600 रुपए फी किलो हो गया। थाईलैंड अदरक की कीमत 200 रुपए इजाफे से 800 रुपए फी किलो हो गई। लीमू 800 से सस्ता होकर 480 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा है। सरकारी नीतनामा में अदरक 576, लहसुन 535 और लीमू 600 रुपए फी किलो हैं। प्याज के सरकारी नर्ख 110 मगर मार्केट में 160 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। हरी मिर्च, करेला, तोरी 120, आलू 100 और टमाटर 40 रुपए फी किलो दस्तयाब हैं। मार्केट में चेरी का 600 ग्राम वजनी डब्बा 450 रुपए का फरोख्त हो रहा है। देसी आलू बुखारा 800, अव्वल क्वालिटी खुबानी 400 और फालसा 200 रुपए फी किलो फरोख्त किया जा रहा है। सरकारी रेट लिस्ट में आलू बुखारा 322, खुबानी 204 और फालसा 182 रुपए फी किलो है। तरबूज 50, खरबूजा 80, आड़ू और आम 150 रुपए फी किलो, जबकि केले 160 रुपए फी दर्जन दस्तयाब हैं। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त परचून में 394 रुपए फी किलो और अंडे फार्मी 209 रुपए फी दर्जन हैं। शहरियों ने जिले इंतजामिया से सब्जियां और फलों की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। मुल्तान में हुकूमती पॉलिसियां ऐलानात तक महदूद। प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल बदस्तूर जारी। दूध, दही समेत तमाम अशिया प्लास्टिक बैग्स में दी जा रही हैं। जिले इंतजामिया माहौल दोस्त इकदाम पर अमल दरामद करवाने में नाकाम नजर आती है।
प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर हुकूमती पाबंदी का आगाज हो गया, मगर मुल्तान शहर की मार्केट्स में शॉपर्स और प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल जारी। दूध, दही, सब्जी और फलों समेत तमाम अशिया शॉपर्स में ही पैक करके दी जा रही हैं। ज़राई इंतजामिया हुकूमती अहकामात की तामील में नाकाम नजर आती है। शहरी कहते हैं कि प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल माहौलियाती आलूदगी का बायस है, मगर ये अचानक खत्म नहीं, फिर कानूनी कार्रवाई करें। इसको बंद होना चाहिए। उसकी वजह ये कि ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन में इसका बहुत बड़ा रोल है कि आपका जितने भी ये मैं समझता हूँ कि बीमारियां हैं और ये सारा कुछ जो गंदगी फैलती है, इनमें उनका बड़ा एक मेजर रोल है। दुकानदारों का कहना है कि हम मजबूर हैं, शॉपर का हमारे पास कोई मुतबादिल नहीं। शहरी माया अशिया के लिए बर्तन या फिर दीगर अशिया के लिए कपड़े का थैला लाएं। हुकूमत को भी हमें इसका आसान मुतबादिल देना चाहिए। प्लास्टिक बैग्स एक बड़ी इंडस्ट्री है, ऐसे अचानक कैसे बंद हो जाए? ये मजबूरी ये है मेरी भाईजान के लोग घरों से बर्तन नहीं लेकर आ रहे, हम किस में दूध डाल करते हैं, हाथों में डाल कर दे नहीं सकते हम, इसलिए मजबूरी है। हम भी अपना कहते हैं कि शॉपर बंद होने चाहिए, इसलिए कि शॉपरों का बहुत ज़्यादा नुकसान है, ये पोल्यूशन फैलती है, गंदगी फैल रही है। कमिश्नर मुल्तान मरियम खान ने डिप्टी कमिश्नर मसीम हामिद सिंधु और CPO सादिक अली के हमरा मार्केट्स का दौरा किया और अलामती तौर पर शॉपर्स को तलब किया। कमिश्नर मरियम खान का कहना था कि मैन्युफैक्चरर्स और ताजर बिरादरी हमारे साथ हैं। प्लास्टिक बैग्स के तमाम स्टॉक को 75 माइक्रोन तक लाया जा रहा है। कानून की खिलाफ वर्जी पर भारी जुर्माने होंगे। डिवीजन को प्लास्टिक बैग से पाक करेंगे। आपके सामने हम लोगों ने बैग्स को आज तल्फ किया है और हमने इसके ऑल्टरनेटिव को भी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ डिस्कस किया है और उसके हम फुल स्पिरिट में इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट कराएंगे। हमारे साथ तमाम ताजिर बरादरी तावन कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि हम मुल्तान डिवीजन को वेस्ट फ्री इंशाल्लाह बनाएं। शहरी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि प्लास्टिक बैग्स और शॉपर्स का खात्मा यकीनी बनाया जाए और मुतबादिल के लिए शहरियों को वसी पैमाने पर आगाही दी जाए। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर्स फराज रमजान और माहिर इमरान के साथ शकील सुल्तान, रोही, मुल्तान। हुकूमत पंजाब की तरफ से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी का पहला रोज। जनूबी पंजाब में इंतजामिया प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल रोकने के लिए इन एक्शन। पाबंदी पर अमल दरामद करवाने के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। दूसरी तरफ बाजारों में प्लास्टिक बैग्स और शॉपर्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। जनूबी पंजाब भर में इंतजामिया प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल रोकने के लिए मुतहरिक। बहावलपुर में डिप्टी कमिश्नर जहीर अनवर ने प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल रोकने के लिए 40 से ज्यादा टीमें बना दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि पहले मरहले में 75 माइक्रोन बैग्स तकसीम किए जाएं। दूसरे मरहले में प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल रोका जाएगा। खिलाफ वर्जी की सूरत में दुकानदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जो प्लास्टिक है ये हमारे माशरे के लिए एक नासूर बन चुका है। दुनिया ने तो इससे बड़ी जल्दी छुटकारा पा लिया था, लेकिन अब हम भी उस कैंपेन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जो हमारे पास जो बायोडिग्रेडेबल शॉपर्स हैं वो हमने सर्कुलेट किए हैं। रहीम यार खान ने जिला इंतजामिया शहर को प्लास्टिक बैग्स फ्री बनाने में नाकाम। इंतजामिया सिर्फ फोटो सेशंस, आगाही वॉक और दावों तक महदूद। दुकानों पर प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल ताहाल जारी है। इंतजामिया ने भी ताजिर बिरादरी को कोई मुतबादिल हल नहीं बताया। मुजफ्फरगढ़ में दुकानदारों और शहरियों ने हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ा दिया। शहर में प्लास्टिक बैग्स और शॉपर्स का इस्तेमाल धड़ल्ले से जारी है। शहरियों का कहना था कि हुकूमती ऐलानात सिर्फ बातों तक महदूद हैं। शहर में धड़ल्ले से प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल हो रहा है और कोई रोक टोक नहीं, न ही इंतजामिया ने कोई क्रैक डाउन शुरू किया है। सुबह मैंने कुछ संभाल लिया घर का, उन्होंने शॉपिंग बैग दिए मुझे। तमाम दुकानदार खुलेआम जो है वो शॉपिंग बैग बेच रहे हैं। यहाँ पर वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ के किसी हुक्म पर अमल नहीं होता। जो शॉपिंग बैग वगैरह जो हुकूमत ने पाबंदी लगाई है वैसे चल रहे, अभी भी शॉपिंग बैग और कपड़े के थैले बने हुए रहेंगे, वो नहीं मिल रहे। मियांवाली में इंतजामिया प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ इन एक्शन। असिस्टेंट कमिश्नर नोमान महमूद राना ने मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और शॉपिंग बैग्स जब्त कर लिए। उनका कहना था कि 5 जून से प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लग चुकी है। शहर में प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी गई। आज हम उसी सिलसिले में निकले हैं। यहाँ पे कुछ जगहों पे हमने प्लास्टिक बैग जो है वो जब्त भी किए हैं और कुछ जगहों पे हमने जो है वो कपड़े के बने हुए बैग एज अ सैंपल लोगों को दिए हैं, पम्फलेट्स दिए हैं। जनूबी पंजाब के अवाम का मानना है कि वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाकर अच्छा इकदाम किया है। प्लास्टिक बैग सेवरेज लाइनों और माहौल के लिए खतरनाक हैं, मगर इस फैसले पर मुकम्मल अमल दरामद तक कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत प्लास्टिक बैग्स का बेहतरीन मुतबादिल जल्द मार्केट में लाए।